नहीं पा जाएंगे। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छे बुरे कॉपी की पहचान बता रहे हैं। आपका फेस वहां स्टिक नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है, योर फादर्स नेम इज नॉट देयर, योर फादर्स डेजिग्नेशन इज नॉट देयर, everything what is there is your handwriting and the technicality of your answer. So what is my tip, what is my suggestion? Everyone knows, just a repetition of the things, that always attempt that question first in which you are most confident and easy going, and present it beautiful so that you can make your first impression bright, good towards the examiner, right? Next one please. Diagrams and figures. See, I'm an expert in electronics engineering and microprocessors embedded, and both the subjects are demanding and a subject of diagrams, right? See, try to understand, you guys are doing engineering. It's not a normal BA, BSc history or geography. Even geography needs a diagrams, right? So, always any answer in which diagram is required, never avoid to draw a diagram. Got it? If there is a diagram or any diagram which is directly or indirectly related to an answer, please don't do conjugacy in drawing a diagram and figure. And that is also, answer must be supported with a well labeled diagram. Labeled and unlabeled diagram, I think you know. When 18 years old, BTech first year, you know. And the figures must be strictly drawn with a pencil. Nowadays, I suggest it has to be scanned. There are number of pencils which come over here. I'm talking about the dark HB pencil, extra dark, Apsara, HB, a number of pencil companies, you know. Even you can draw with a black ink if you are confident कि हमसे गलती नहीं होने वाली है. ब्लैक इंक पेन से ड्रॉ करने में एक घाटा ये होता है कि आपको अचानक याद आया कि ये लाइन यहाँ से नहीं यहाँ जानी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to redraw a separate diagram, या तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा. So you have to take care. अब कॉपीज स्कैन होती हैं, अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करने के वो हैं तो मार्केट में अब एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स अवेलेबल हैं. हल्की वाली मत लीजिए, उसमें स्कैनिंग अच्छी नहीं आती है. सो दैट नाउ ड्रॉइंग अ पेंसिल पेन इसलिए भी ज्यादा हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं. यू सी द क्वालिटी ऑफ एन AKTU पेपर्स, दैट इज नॉट एन स्टैंडर्ड क्वालिटी. अब तो एक एग्जाम देख चुके हैं ना, रफ वाले पेजेस होते हैं. दैट इज नॉट नीशू एंड ऑल दैट जो कि ब्लॉट वाले होते हैं. इट्स आप इंक रख के अगर डायग्राम के बारे में सोचने लगेंगे, यू विल गेट अ ब्लॉट ओवर देयर. वो पिछले पन्ने पे आ जाएगा, मतलब आर पार हो जाता है. व्हाट आई मीन टू से, राइट? ब्लॉटिंग होती है. सो दिस एड्स अप टू योर बोनस. ड्राइंग अ फिगर एंड द डायग्राम. द नेक्स्ट वन प्लीज. ग्राफ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रॉन ग्राफ इन योर फर्स्ट सेमेस्टर? किसी भी रूप में ग्राफ इस्तेमाल किया? प्लीज रेज योर हैंड्स. Now I tell you the fact and figures according to that. जब आपकी कॉपियां सबमिट होती हैं, जहां पे कंट्रोल रूम में जमा होती हैं, thousands of copies are being tied up. They are tied up and then they are staged in a boxes there. कई बार ऐसा होता है लूजली आपने ग्राफ बीच में लगाया है, और कई बार ऐसा होता है, वी हैव सीन, हम लोग ने ग्राफ पेपर और छोटे छोटे ट्रेसेस उठा के दिए एग्जामिनर को कि बंडल से गिर जाता है. 40 कॉपी का बंडल, एक ग्राफ पेपर गिरा, हमने उठा के एग्जामिनर को दे दिया कि सर आपके बंडल से गिरा है. वो जहमत लेंगे आपकी कॉपी खोज के कहां पे लगा हुआ है लगाने की? आप बताइए. दिस हैपेंस. नहीं लेंगे. दे डू नॉट नो इवन ना आपने ग्राफ पेपर के कहां नोट नंबर और नाम लिया है. वो चाह के भी नहीं लगा सकते हैं, राइट? तो वो आपको खुश करने के लिए कह देंगे अरे बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, सब हो जाएगा. नेवर हैपेंस एट दैट. यू हैव टू टाई इट. You don't have to paste it. Glue is not available here. Put a stapler over there. And whenever you draw a graph paper, scale is most important. Scale, I think you must be knowing. Scale लिखना पड़ता है हमें. How we have abbreviated this graph over there, right? To put an accuracy. And one more suggestion is that writing your roll number, which is there on the graph paper, is not permitted. Writing your roll number anywhere in the copy is not permitted. 2 बार 3 बार हम बता रहे हैं. Last page इसी के लिए है. So if you are using a graph paper in your subject, then it must be well scaled and must be firmly attached with the copy staple to avoid probability of losing it. You shouldn't lose it. Next one please. Underlining. How many of you know what is a keyword? Keyword किसको बोलते हैं? Do anyone wants to answer? जिसको आंसर देना वही हाथ उठाएगा. Please जोर से बोलिए मत. So the words that describe the central idea of the answer. Very good. सी आगे चल के जो लोग रिसर्चर बनेंगे, पब्लिकेशन में आएंगे, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि 3-4 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरा सेंट्रल आइडिया और कोर ऑफ द आपके आंसर बता देते हैं. और सच में अगर आपको आता है, so the important, very important points and keywords will be underlined or emphasized. And if it is a derivation, the end result, the derivative left hand side is equal to right hand side will be rectangle I have written over there, right? साफ साफ लिखना प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज होती है इन एनी ऑफ द डेरिवेशन. आपको आता हो तो. नहीं आता है तो जानबूझ के कई बार आप गंदा लिखते हैं कि एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाएगा, ये सोचेगा कि सही ही होगा, नंबर दे देगा. ऐसा नहीं होता है.
वी आर नॉट योर रिलेटिव्स, वी आर मर्सीलेस पीपल। सही लिखा होगा, नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। कारण ये है, हम आपका चेहरा तो देख ही नहीं रहे हैं ना। वट एवर यू हैव रिटन यू विल गेन मार्क्स फॉर दैट। मर्सीलेस कॉपी इज चेकिंग ओवर देयर AKTU, और मर्सीलेस कॉपी चेक होती है। अब तो आप जान ही गए होंगे ना, अब तो पूरा प्रमाण आपके पास है ना। नेक्स्ट वन प्लीज। Ink color. I have seen students using magenta, orange, pink color inks to decorate it, like it is an biology copy. Amoeba बना रहे हैं, right? You are an engineering student. You are not ought to use any of the ink except black and blue, right? अब देखिए, कई लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। उसका रीजन पता है एक दूसरे को क्यों देख के हंस रहे हैं? They were in habit of using it, right? It looks kiddish. And when you scan it, वो एक ड्राइंग पेपर लगने लगता है। सॉफ्टवेयर में जब हमारे पास आता है, कुछ देर मुझे हंसी आ जाती है, अरे व्हाट द हेल ही हैज डन दिस, हेडिंग वोडिंग ऐसे सजाया गया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, जो मैंने नहीं लिखा है, आई हैव फाउंड रिटन ओवर देयर ओम जय गुरुदेव, राइट? बोलो महाकाल की। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। आपकी हेल्प उस दिन एग्जाम में केवल और केवल आप कर सकते हैं, राइट? महाकाल ने शरीर इतना बड़ा दे दिया, दिमाग दे दिया, और क्या करें, आके कॉपी लिखे क्या आपकी? नेवर डू दैट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कम ऑन हियर। सो अवॉइड चेंजिंग ink of the color answer. Do not use colorful ink as it looks childish at this level, and you are not childish people. आप लोग बड़े बड़े काम करने के लिए बने हैं और करते भी हैं बड़े बड़े काम। नेक्स्ट वन प्लीज। क्वेश्चन पाथ्स। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो लोग हैबिट में है कि 2A किया, फिर 3B किया, फिर 4E कर दिया, फिर 5A किया, फिर से 2C किया, 2D किया। व्हाट विल हैपन? क्या होगा अल्टीमेटली? जरा पढ़ के हमें बताइए, मुझे पूरा रटा हुआ ये स्लाइड। क्या होगा एग्जैक्टली? जिस रफ्तार से हम लोग कॉपी चेक करते हैं, एंड देयर इज अ सीक्रेट आई हैव टू शेयर विथ यू. I don't think any teachers are sitting there. Are few. Those are all my friends. We get paid for getting copy checked. Do you know this? Yes. So will I try to check more copy in less time or less copy in more time? More copy in less time. I will not tell the answer. You just guess, right? So the secret which I have told you here, आपकी गलती के लिए हम 4 बार नहीं चेक करेंगे. It's not my son gave me copy. कि यार इसने 2B नहीं किया है, पूरी कॉपी में 12 पन्ने हम लोग देख रहे हैं। देखिए, हार्ड कॉपी में हम लोग चेक भी कर सकते थे, क्योंकि कॉपी के फ्रंट पेज पे एक चेस बोर्ड बना रहता है। देखा आपने? देखा कि नहीं? व्हाट इज दैट? वो ये बताता है कि बच्चे ने 4 में से 3 करना था, 3 किए हैं कि नहीं किए हैं। बच्चे ने 2 ही किया है। हार्ड कॉपी होती थी, एक बार हम पलट भी लेते थे जल्दी से कि यार 2B कहीं किया तो नहीं, ये छोटा सा लिखा हो हम खोज लें, उसको दे दें। ये डिजिटल कॉपी है, इसमें ऐसे उंगली हम लोग की गट्टा हो जाती स्क्रॉल करते करते। माउस 20 पन्ना स्क्रॉल कर चुके हैं, नहीं मिला, आई विल नॉट गो अगेन। बात समझ पा रहे हैं? हार्ड कॉपी डिजिटल कॉपी में क्या अंतर होता है? इट्स जस्ट लाइक रीडिंग ए न्यूज़पेपर। आप लास्ट पेज पे हैं, कोई न्यूज खोजने के लिए 24 पन्ना फिर से पढ़ना पड़ेगा। व्हाई विल आई डू सो यार? आई एम नॉट योर फ्रेंड और अ रिलेटिव। सो व्हाट इज द बेस्ट प्लीज? Yes. Attempt that question first which you know very well, the question not the sub part. Suppose second question मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, सारे parts वही हम करेंगे second के. Try to understand, there's a sub part and there's an internal choice also. So what I am saying, always try to attempt all the parts of a single question at one place instead of scattering it in the whole copy. The reason being is that it leads to the probability of missing any part of the question you have already answered, right? कारण ये है, जितना आप स्कैटर्ड लिखेंगे, आपके लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये फाइंड आउट करने में कि सारे आंसर के सारे सब पार्ट्स उतने ही लिखे हैं जितने रिक्वायर्ड हैं। आप बात समझ रहे हैं? हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं क्वेश्चन 1 से शुरू करिए। एक क्वेश्चन उठाया तो उसके सब पार्ट्स एक लाइन से लिखिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन प्लीज। प्रिसिजन, बी प्रिसाइज in your answers and answer to the point and necessary relevant writing will attract negative answers, negative marks, negative impression. Overwriting में क्या हो जाता है? एक चीज और हम आपको बता दें, 100-150 कॉपी चेक करने के बाद हम लोग के कॉपी की एक फोटोग्राफिक इवेंट, एक इमेज डायग्राम, ये हमारे सेरेब्रम में बस जाता है।
हम पूरा पढ़ते नहीं हैं। जैसे ही आपकी कॉपी सामने आएगी हम कहेंगे कुछ अननेचुरल है, देन आई विल स्टार्ट रीडिंग। सही आंसर जो होता है ये यहाँ हमारे छप जाता है। 100 कॉपी चेक करने के बाद खटाखट पेज जाता है, नंबर बढ़ता चला जाता है, नंबर उड़ता चला जाता है। कोई कॉपी हम चैलेंज कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, उसमें एक नंबर इधर उधर हो जाए। जैसे ही कुछ इररिलेवेंट आ जाएगा ना, हम रुक जाएंगे, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। आर यू गेटिंग इट? दिस इज जस्ट लाइक चेकिंग अ पासपोर्ट एट अ एयरपोर्ट। सारे भारतीय नीले पासपोर्ट जा रहे हैं, अलग कलर का जरा सा भी दूर से दिखेगा हम रोक देंगे, रुक जाइए, इधर आ जाइए। आर यू गेटिंग इट? डू नॉट राइट इररिलेवेंट थिंग्स। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि लंबा सा आंसर इसलिए लिखते हैं कि इसमें से शायद एक दो लाइन सही हो जाए। पूछा कुछ गया है, लंबा आंसर लिखने में सोचते हैं शायद ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों चीज लिख दिया। That is not required. You will not get a single penny out of that. Right? Will not attract. Be precise. बीटेक कर रहे हैं भाई, कौन सा इतिहास लिख रहे हैं गांधी जी का बाय द साउथ अफ्रीका से, उसके बाद उन्होंने क्या किया? I have to write an answer, get a marks. Right? So you don't have to write irrelevant. और कोई सीनियर अगर ये बताए हो कि भैया छोड़ के ना आना, लिख देना, चाहे कुछ भी लिखना, ऐसे बताते हैं ना बड़े बड़े सीनियर। जो हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो हमारे कॉलेज के सामने गुमटी है, सारी ज्ञान की बातें वहां बताई जाती हैं। आओ बालक बैठ जाओ, खुश रहो खुश रहो, गुरु लिख के सब आना, नंबर तो मिल ही जाता है। यू गॉट एन आंसर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, कुछ भी लिखने पे यू डिडंट गॉट मार्क्स, राइट? सबने भर भर के लिख के आई थी, फिर भी 26 नंबर 100 में से। चेक हो रही है भैया, कॉपी बाकायदा पढ़ के मिल रहा है, एग्जामिनर को नोटिस आ जा रही है। कैसे चेक कर रहे हैं आप लोग? ये चैलेंज इवैल्यूएशन में नंबर वो हो जा रहा है। नौकरी पे आ रही है हम लोग को, जो लिखेंगे उसी पे नंबर पाएंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। Fresh page. I am not talking about a sub part of an answer. I am talking about the main answer. 5 ही क्वेश्चन आपके रहेंगे 5 यूनिट के। पहला वाला कंपलसरी रहता, ऑब्जेक्टिव रहता है। क्वेश्चन फ्रेश पेज पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। 40 साइड्स रहते हैं आपके पास, 20 पन्ने रहते हैं। क्वेश्चन मेन आप स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड थर्ड, वो फ्रेश पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन अफोर्ड, यू कैन मैनेज स्पेस, दिस इज नोन एज स्पेस मैनेजमेंट। आप इतनी सी जगह बची है उस पन्ने में, फ्रेश 5वां आंसर कर रहे हैं। जिस रफ्तार से कॉपी चेक होती है, अगर हमने मिस कर दिया कि 5वां आंसर आपका यहां शुरू है, हम दोबारा पलट के नहीं देखेंगे। सो व्हाट इज द सजेशन गिवन हियर? द मेन आंसर शुड स्टार्ट विद अ fresh page. You have got a 40 sides of the pages, possibly try to begin the main answer from a fresh page to assure as the termination of the previous answer and start of the present one. Next one please. Answer numbers. सब कुछ आ रहा है हमें, इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, सब लिख के आए हैं, आंसर नंबर 1 लिखे ही नहीं है। कौन सा दे रहे हैं? खुश हो गए, अरे गजब, जो पढ़े थे सारा वही आ गया है, लिखो गुरु। बाहर निकले यार, आंसर नंबर कौन सा लिखे, तो लिखने भूल गए। मेरे साथ एक हुआ था। This happens or not? We are humans. मिस्टेक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मिस हो जाता है। आंसर नंबर भी लिखिए, either you write in a center or towards the left of the copy. Font size बड़ा लिखिए। Just I repeat once again. आंसर 4A शुरू कर रहे हैं, फॉन्ट साइज बड़ा लिखिए। आपको एग्जामिनर को नॉक करके बताना है, गुरुजी अगला आंसर शुरू हो गया है। आप वहां रहेंगे तो नहीं सामने, कौन बताएगा? आपकी हैंडराइटिंग बताएगी, राइट? बोला बना दीजिए, सेंटर में लिख दीजिए, नथिंग बैड ऑन दैट। बट इफ यू आर राइटिंग अ फ्रेश आंसर, कौन सा आंसर लिख रहे हैं ये तो बताएंगे ना दोस्त। कई बार आपको पता है, आंसर पढ़ के हम लोग जान जाते हैं कौन सा आंसर इसने लिखा है, रट जाता है ना चेक करते करते। आप भी 50 कॉपी चेक करिए, रट जाएगा किसका आंसर है। डू नॉट डू दिस मिस्टेक। आंसर नंबर नहीं रहेगा, खटखट से पिछले वाले में इवैल्यूएट हो जाएगी, यू विल लूज मार्क्स फॉर दैट। सो सेंटर राइट और राइट हैंड साइड प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज। This is crucial one. How many of you know you will never get a B copy there? ये पता है ना आप लोग को? Yes, sir. जो करना है उसी में करना है, भारत का इतिहास लिखना है उसी में लिखना है, यूक्रेन के बारे में लिखना है उसी में लिखना है। तो there is a concept known as space management, right? What is a space management? कि there are two methodologies. Either you make a divider there in the center of the page, you make a one page in a 2 column. डबल कॉलम मेथड में आप लिख सकते हैं, या सिंगल कॉलम में आप लिख सकते हैं। Have a control at the font size of your handwriting. Do you know the exact terminology, font size of your handwriting? Do not write at a 70 or 80 font कि आप पूरे पेज में 4 ही लाइन लिखे, पेज खत्म हो गया। So have a control on that
एंड व्हेन यू राइट द फर्स्ट आंसर आपको एक अंदाजा हो जाता है कि पहले आंसर लिखने में आई हैव कंज्यूम्ड दिस वन, वो धीरे धीरे मैटर आ जाता है। बिकॉज अगर आप स्पेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे, 40 पेज आपके भर गए हैं, उसके बाद भी 2 आंसर बचे हैं, neither the evaluator can do anything, neither the invigilator can do anything, neither the central superintendent, because there is a, by rule you not get a B copy, right? So space management is crucial. Next one please. Mistakes. This is nature of human being. अगर हम मिस्टेक नहीं करते हैं तो वी आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। डू यू एक्सेप्ट दिस और नॉट? सभी करते हैं। हो गई, गलत लिख दिया, क्या करेंगे हम उसको? भाई मिटा पाएंगे नहीं। क्यों नहीं मिटा पाएंगे? रीजन जान लीजिए। इंक से आपने लिखा, AKTU जो पन्ना देता है बिना कुछ लिखे ही उसके आर पार दिखता रहता है, इतना पतला पन्ना रहता है। अब आपने निकाला बड़ा वाला इंक रबड़, उसी पे चढ़ गए मार, खटर खटर करने लगे। अब फिर आपने पन्ना लिखाया, वो आर पार दिखने लगा, इसे देखे इन्विजिलेटर दिखने लगा, कहना अब क्या करें यार, राइट? डू नॉट रब इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अरे गलती सबसे होती है ना, अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस दैट। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर जान जाएगा कितना बड़ा गड्ढा है, गलत लिख दिया, उसमें मार गोल गोल बनाते रहते हैं, स्पाइडर बना डालते हैं। दैट लुक्स मोर अगली, इट लुक्स लाइक अ बैटलफील्ड। गलती हो गई, लाइन स्ट्राइक किया, अगला लिखने लगे। इतना तो हम लोग भी पढ़ के आए ना, लाइन काटी गई तो उसको क्यों बार बार पढ़ेंगे? जो लिखे हैं वही हम लोग पढ़ लें, बड़ी बात है। कटा हुआ हम क्यों पढ़ेंगे? नहीं समझ पा रहे हैं ना? इतना फुर्सत हम लोग को नहीं रहता है। सीनियर बता देते हैं, अबे गलती हो जाए छोड़ना नहीं जान लेगा सब गलत गलत लिखा है, उसमें आप लोग जूझने लगते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मिस्टेक्स आर देयर, यू डोंट हैव टू मेक द कॉपी एज अ बैटलफील्ड, राइट? मेक इट नीट एंड क्लीन, क्लीनलीनेस आल्सो मैटर्स। नेक्स्ट वन प्लीज। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये तो मैं जरूर डालता हूं जब जब प्रेजेंटेशन लेता हूं। बड़े भैया ने कहा है कि बहुत जल्दीबाजी में कॉपी चेक होती है, चौथे वाले आंसर में 3 अटेम्प्ट करना था, 4 तो कर दो, कौन देखता है, सब जोड़ लिया जाता है कि नंबर मिल जाता है, कौन कह रहा है? ऐसा हो जाएगा क्या? चेस बोर्डवा जो बना है पहले पन्ने में, क्या बताता है वो? कितने अटेम्प्ट किए हैं? वी हैव टू ऐड दैट। ये आप भूल जाते हैं, सीनियर की बात मान जाते हैं। गुमटी पे 2 चाय पिलाए थे सर, कहे थे धड़ल्ले से अटेम्प्ट करो, कौन चेक कर रहा है? इनको फुर्सत है जोड़ने की? सच में नहीं है फुर्सत। द चेस बोर्ड टेल्स एवरीथिंग, द डिजिटल डेटा इज एंटर्ड ओवर देयर। अब तो डिजिटल कॉपी हो गई है ना, 4 ABC डाले, D में नंबर ही नहीं जाएगा, और पकड़ अलग से हम ले लिए कि सब में एक्स्ट्रा किया है। अब हम तो आपसे कभी नहीं मिलेंगे जीवन में, आप जान ही नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए तब भी नहीं जान पाएंगे कौन इवैल्यूएटर था, यहाँ का था, युगांडा का था। अब हम आपकी खबर ले लेंगे उसी में, सारी चीज हम उसी में निकाल देंगे। हमारा मूड ऑफ हो गया, सब में एक्स्ट्रा है, हम उसी में 2 कॉपी चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा 4 ठो पढ़वाए हो हमें आंसर, आओ समझ लो, हमको खोज लेना। नेवर अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा आंसर, गॉट इट? जितनी भी थ्योरी कहती हैं कि कौन चेक करता है, झटके में ऐड हो जाता है, कुछ झटका उटका नहीं होता। चेस बोर्ड बना हुआ है, ऐड ही नहीं होगा भाई, वो सॉफ्टवेयर ऐड कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? नेवर अटेम्प्ट एन एक्स्ट्रा वन प्लीज। इररिलेवेंट राइटिंग, आप विश्वास नहीं करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में आई हैव रेड इन इंग्लिश, people have written, I went for the vacation to my nanny's place and it was so beautiful. I found every electronic gadget running with a microprocessor. Microprocessor is such a handsome and a beautiful personality. I have taken a snapshot of that. It is there with me. I don't know from UP कहाँ से वो कॉपी आई थी। कुछ देर तो मैंने अगल बगल के टीचर्स को बुलाया, अरे मैम इसको पढ़िए, सर इसको जरा पढ़िए, क्या क्या लिखा है, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में बताया। ऐसा करना चाहिए क्या हम लोग को? उसको भी कोई गुरु टकराए गए होंगे कि यार ना आए तो छोड़ के ना आना, ऐसे गुरु मिलते हैं ना यार, ना आए तो छोड़ के ना आना। छोड़ के आना मतलब 0 नंबर, कुछ लिख दोगे शायद पाई जाओ 2-3 नंबर। इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट, नेवर डू दैट। अपना परिहास नहीं उड़ाना है तो मत लिखिए रेलेवेंट राइटिंग। नहीं आता आंसर, ना जानना तो अच्छा, आर वी रिक्वायर्ड कि हम सब कुछ जाने प्लेनेट पे? नहीं जरूरत है ना यार, अच्छे नंबर लेके पास होना है, कौन सा हमें आइंस्टीन बनना है? अरे ना जानना कोई अपराध नहीं है, उल्टा सीधे लिखना, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाना सच में अपराध है। फिर वो जैसे नापेगा आप समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट में ऐसा हुआ हो, कुछ इरेलेवेंट लिख दिए हो, मूड खराब हो गया हो, फिर कायदे से चेक कर दिया हो आपको। दिस इज व्हाट हैपेंड। सी, experts of that subject you may have several punishment for that, you will know, आपको हवा भी नहीं लगेगी वो आपका क्या नुकसान कर देगा। नेक्स्ट वन प्लीज। टाइम कंस्ट्रेंट,
बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग, पेपर आसान आया, पहला 10 मिनट तो केवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत आसान आया, अगल बगल देखते हैं, ओ भाई ठीक है, सब बढ़िया, राइट। वी गेट एक्साइटेड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सेलिब्रेट करते हैं, इट्स सच अ नाइस पेपर, वी ग्रीट एवरीवन, सही है और सब बढ़िया, कैसा लग रहा है, एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग। और पहले वाले आंसर में इतना ज्यादा मेरा तैयार था, अभी अभी हम इसी को पढ़ के आए थे, वही आ गया, आज एकदम प्रसन्न, भोले बाबा 1.5 घंटा पहले ही आंसर लिख डाले। एक बच्चा हमसे टकराया, इन माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग आती है असेंबली लैंग्वेज की, उसको इतना अच्छा वो सॉर्टिंग मेथड आता था, 3 मेथड से वही सॉर्टिंग लिखा कि आज गुरुजी जान जाएंगे हम नेता हैं। अंत में 2 क्वेश्चन छोड़ बैठा, समय खत्म हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग, you have to take time management as a constraint whenever you are writing, right? Like I am seeing my watch every time कि I have to finish it in 20 minutes. Time constraint matters and it has to be taken care. पहले वाले आंसर में इतने ज्यादा ना लीन हो जाइए कि अगला 4 आपसे छूट जाए। Got it? Next one please. ये सबसे इंपॉर्टेंट है and this we are coming to the end of the slide. कहीं भी अपना नेम, रोल नंबर, अनवांटेड चीज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहीं ना रखें। जो इसमें नहीं लिखा है वो भी मैं बता रहा हूं, कोई स्लिप, नोट, ये सब कुछ भी कॉपी में नेवर डू दैट। इनडायरेक्टली मैंने समझा दिया ना। यूपी बोर्ड का सुने हैं कि नहीं? 500 यूपी बोर्ड में इवैल्यूएटर्स घर से नाश्ता नहीं ले जाते हैं। हाउ दे डू दैट? Every 100 or 70 copy the currency comes out of that, right? You are a BTech student और आपको तो पता है हमें डिजिटल कॉपी मिलेगी ना, रुपया स्कैन करके आए, हमारे काम का है क्या? You are an important guys, right? Next one please. This is all that I have to tell. This was the last slide. Be healthy. इसको ले लीजिएगा पीपीटी हमसे प्लीज, आधा भी इसमें फॉलो कर लेंगे, कम से कम अच्छे नंबर आपके मिल जाएंगे, बैक तो लगेगी ही नहीं। उससे इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, तभी तो आंसर लिख पाएंगे ना, टाइम मैनेजमेंट हो वो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। एकदम